My lovely students, welcome to Mathological. This is the second session on probability, and if you've not watched the first session, then make sure to check out that session first and then come back to the session. That will be better. Start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to the channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first of all, before practicing questions, we'll be discussing dependent and independent events. What are dependent events and what are independent events? We've already discussed what is an event in terms of probability. So first of all, what events are independent? So if there are two events and occurrence of one does not affect the chances of other, ठीक है, दो इवेंट्स हैं हमारे पास एंड एक के अकर होने से दूसरे के चांसेस अफेक्ट नहीं होते हैं देन दोज इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट. Occurrence of one event does not affect chances of other, and this can be better understood by an example. Let us say, for example, we are tossing a coin. ठीक है, tossing a coin twice. We are tossing a coin twice, and A is the event that is head on first toss, and B is another event that is head as an outcome on second toss. And the question is, what is the probability of event A happening and what is the probability of event B happening? तो सिंस एक ही टॉस है जिसको हम दो बार टॉस, एक ही कॉइन है जिसको हम दो बार टॉस करा रहे हैं, isn't it? So कॉइन इज सेम. सो क्या सेकंड टॉस के टाइम पे द फर्स्ट टॉस का रिजल्ट विल बी रेलेवेंट? आई मीन फर्स्ट टॉस के रिजल्ट से क्या सेकंड टॉस का जो हमारा रिजल्ट है अफेक्ट होगा? नहीं अफेक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज दैट इज द सेम कॉइन. ठीक है, तो फर्स्ट टॉस के टाइम पे व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? सिंस इन एनी टॉस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, either a head will be an outcome or tail will be an outcome, and both are equally likely. So two possible outcomes are there, out of which one is favorable because हमें क्या चाहिए? Head. So out of two total, one is favorable. तो probability of head on the first toss that is equal to 1/2. By same logic, second toss में भी क्या होगा? Probability of B, head on the second toss. Again दो आउटकम्स ही पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और पहले आउटकम में चाहे हेड आया हो या टेल आया हो, दैट विल नॉट अफेक्ट आवर आउटकम इन द सेकंड टॉस. दैट इज वाई सेकंड टॉस में ही प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1/2. So probability of event B is not dependent on event A. ठीक है, occurrence of event B, chances of event B are not dependent on event A. That is why these two events are called independent events. Independent events. और जब भी ऐसा केस होगा कि two events are independent, let us say question is asking what will be probability of both occurring together, A as well as B. ठीक है, उल्टा U यानी कि both are occurring, this implies and, और सीधा U that implies or. तो that probability of A intersection B यानी कि A as well as B both are occurring together, यानी कि head on the first toss as well as head on the second toss. So in this case, since both events are independent, so this will always be equal to probability of A multiplied by probability of B, and hence in this case this will be 1/2 into 1/2, which is equal to 1/4. Probability of tosses on both coin toss, probability of head on both coin tosses, not tosses, tosses तो हो ही रहे हैं, probability of heads on both coin tosses, that will be equal to 1/4. ठीक है, अगर हम यहाँ पे केसेस भी बनाते तो केसेस क्या बनेंगे हमारे? either it will be head and head, head and tail, tail head, tail tail, and all four are equally likely. और हमें क्या चाहिए? दोनों में हेड चाहिए, which is only happening in first case. So 1/4. बट ये लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि 1/2 into 1/2 होगा. क्यों होगा? बिकॉज A and B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दैट इज वाई. ठीक है, एंड वेन एवर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज टू इवेंट्स happening together will always be equal to probability of one multiplied by probability of the second. अब ये तो केस होगा जबकि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, बट हमेशा तो ऐसा जरूरी नहीं है. सम केसेस विल डेफिनेटली बी देयर व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट. तो व्हाट आर डिपेंडेंट इवेंट्स? व्हेन अकरेंस ऑफ वन अफेक्ट्स
the chances of other. Dependent events are those events when occurrence of one affects the chances of other. Exactly the opposite. And if occurrence of one is affecting the chances of other, in that case, the events are called dependent events. Let us take one simple example and then we'll be discussing the formula. As such, बात समझ जाओगे तो फॉर्मूले का कोई खास जरूरत पड़ेगा भी नहीं. ठीक है, let us say there is a basket and in that basket we have 2 red balls and we have 3 green balls. 2 red balls and 3 green balls. अब यहाँ पे भी 2 इवेंट्स लेते हैं. Event A is green ball drawn, green ball in first draw. ठीक है, we are drawing a ball, that is the event. So A is the event, that green ball in first draw, and B is the event, that is green ball in second draw. And both these draws are without replacement. Without replacement, because जब हम without replacement draw कर रहे हैं तो when we are drawing, let us say first ball, तो after drawing the first ball, initially there are 5 balls, 2 red and 3 green. After drawing the first ball, second draw के time पे we'll be having 4 balls, isn't it so? And first draw में we can have 2 cases, either the red ball will be drawn or the green ball will be drawn, तो both will है. तो हमारा जो second draw है यानी कि B event will be dependent on event A, because अगर event A में फर्स्ट ड्रॉ में इफ वी हैड ड्रॉन ग्रीन बॉल तो सेकेंड ड्रॉ में नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स विल बी रिड्यूस्ड. अगर फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल ड्रॉ हुई होती तो सेकेंड ड्रॉ में नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स वुड हैव रिमेन्ड द सेम, बट टोटल ड्रॉस तो तब भी रिड्यूस करता. तो सेकेंड इवेंट इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन द आउटकम ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ, isn't it so? यहाँ पे हमारा जो सेकेंड इवेंट है दैट इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन द आउटकम इन द फर्स्ट ड्रॉ. दैट इज वाई दीज इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स. और ये तभी इंपॉर्टेंट है जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट है. विद रिप्लेसमेंट होगा तो अगेन एक बार हमने बॉल पुट कर दी तो फिर सेकेंड ड्रॉ में भी सेम सिनारियो बन गया. यानी कि विद रिप्लेसमेंट में द इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट बिकॉज the scenario, the basket will again be having same number of red balls and same number of green balls. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बट विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में नंबर ऑफ बॉल्स इज चेंजिंग, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स और रेड बॉल्स माइट ऑल्सो चेंज, क्योंकि कोई एक बॉल तो ड्रॉ हुई होगी फर्स्ट इवेंट में. ठीक है, तो डेफिनेटली दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स. और जब भी हमारी इवेंट्स डिपेंडेंट होगी तो वहाँ पे हमारे पास जब हमें कैलकुलेट करना होगा प्रोबेबिलिटी बाय द सेम सिनेरियो कि वी नीड ए एज वेल एज बी, तो हमें प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके नहीं मिलेगा. ठीक है, बिकॉज ए इवेंट में नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स माइट बी डिफरेंट, 3 है. बी इवेंट्स में दिस कैट कुड बी 2 और 3. दैट विल डिपेंड ऑन द फर्स्ट ड्रॉ इटसेल्फ. दैट विल डिपेंड ऑन द फर्स्ट ड्रॉ इटसेल्फ. इज दैट क्लियर? तो इन सच ए केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी both occurring together, that will be equal to probability of A multiplied by, अगर हमने probability of A हमें पता है, so if we know probability of A, in that case we also need to know probability of B such that A has happened, यानी कि conditional probability of B when A has already occurred. Conditional probability of B when A has already occurred. ठीक है, या फिर इसको कहते हैं conditional probability of B given A. This part is said probability of B given A. Yeah, if we know probability of B, then this can be written as probability of B multiplied by probability of A given B. Both are correct. फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेनी है, अभी एक बार बात समझ जाओगे तो फिर इस फॉर्मूले की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट अवे हर बार अप्लाई कर पाओगे विदाउट रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है फॉर्मूला में भी, बट अदरवाइज ऑल्सो यू विल बी एबल टू कॉन्फिडेंटली अप्लाई द कॉन्सेप्ट विदाउट रिमेंबरिंग द फॉर्मूला. ठीक है, अब एग्जाम्पल जो अपना देख रहे थे उस एग्जाम्पल की बात करते हैं. सो इन दिस एग्जाम्पल हमें चाहिए probability of A and probability of B and then we'll be calculating probability of A intersection B. ठीक है, so what will be probability of A? Since पहले तो हम फर्स्ट ड्रॉ करा रहे हैं, so फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन बॉल का probability क्या होगा? We have total 5 balls, but out of these 5 balls 3 are green, the probability of A will be equal to 3 by 5.
ठीक है, नाउ वी नीड टू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज फर्स्ट ड्रॉ में भी ग्रीन बॉल निकले और सेकंड ड्रॉ में भी ग्रीन बॉल निकले, ग्रीन इन बोथ केसेस। और फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन बॉल निकला है, ये तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज अकर्ड, बिकॉज ए अकर किया है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कम हो गए हैं, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हैज रिड्यूस्ड नाउ, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, सो ए हैज अकर्ड, ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस प्रोबेबिलिटी इज 3/5 and after this event, once we have removed one green ball, now we have two red balls and two green balls, these are the remaining number of balls. So total 4 balls are remaining, out of which 2 are green and we need to draw a green ball, hence answer will be 2 favorable cases out of total 4 because only 2 green balls are remaining. So now probability for both happening A intersection B, and green ball in the first draw as well as green ball in the second draw, that will be 3/5 into 2/4, which is 3/10. So this will be our answer. इज दिस क्लियर? और अगर विद रिप्लेसमेंट होता कि एक बार हमने बॉल निकाल के कलर देखा फिर वापस से रख दिया, ठीक है, सो इन दैट केस इवेंट्स हमारी इंडिपेंडेंट होती। इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट, A and B are independent. So in such a case, probability of A intersection B would have been probability of A multiplied by probability of B, और probability of A क्या है, 3/5, and since we again replace the ball, the probability of B will also be 3/5, so that answer would have been 9/25. But in this particular scenario, in case of without replacement, this will be the answer. क्या ये दोनों बातें अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो हमने अच्छे से समझ लिया कि व्हाट आर डिपेंडेंट इवेंट्स एंड व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड व्हाई बी आवर लॉजिक इज डिफरेंट इन बोथ केसेस। एंड इफ दैट इज क्लियर, तो हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। The question is, a silver coin is tossed. If it lands on head, then a dice is thrown, and if it lands on the tail, the coin is tossed again. एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, इफ इट लैंड्स ऑन अ हेड देन डाइस विल बी थ्रोन, एंड इफ इट लैंड्स ऑन अ टेल देन कॉइन इज टॉस्ड अगेन। दो ही आउटकम्स पॉसिबल थे, या तो हेड आता या फिर टेल आता। पॉज करके सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओनली 2 आउटकम्स वर पॉसिबल ऑन अ कॉइन टॉस, ईदर अ हेड और अ टेल, एंड सिंस ओनली 2 आउटकम्स आर पॉसिबल एंड बोथ आर इक्वली लाइकली, 50% चांस थे for a head and 50% chances were for a tail. If it lands on head, then a dice is thrown. तो अगर हमारा हेड आता तो उस केस में डाइस थ्रो करेंगे, एंड डाइस विल बी गिविंग अस 6 आउटकम्स, इधर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. If tail is the outcome, in that case we are again tossing the coin. So it will be giving either head or tail. ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे क्या क्या इवेंट्स पॉसिबल हैं? ईदर इट विल बी हेड ऑन द कॉइन टॉस, एंड देन आफ्टर हेड वी आर throwing a dice, तो head and 1 or head and 2 or head and 3 or head and 4 or head and 5 or head and 6, these 6 are possible outcomes. If coin toss पे head आता है, हमने फर्स्ट टाइम टॉस कराया, सो इफ दैट आउटकम इज हेड देन वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स. अगर कॉइन टॉस पे टेल आता है, सो इन दैट केस वी हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स, दैट आर फर्स्ट टेल देन हेड एंड ईदर बोथ आर टेल्स. So 2 possible outcomes. Total outcomes in this case are equal to 8. 8 possible outcomes are there. Now the question is, are these 8 outcomes equally likely? क्या ये 8 outcomes हमारे equally likely हैं या नहीं है? देखो, definitely when we are tossing a coin, तो head and tail as an outcome are equally likely. These two are equally likely. But are all 8 outcomes equally likely? देखो, हेड आने के चांसेस है 50%, टेल आने के चांसेस आर ऑल्सो 50%, बट वंस हेड इज द आउटकम इन द कॉइन, देन वी आर थ्रोइंग अ डाइस. अभी जो डाइस पे 6 आउटकम्स आ रहे हैं, ऑल दीज 6 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू. ठीक है, बट जब कॉइन टॉस में टेल आ जाता है, देन वी हैव ओनली 2 आउटकम्स, एंड दीज 2 आर इक्वली लाइकली अमंग देमसेल्व्स. But the 8 outcomes, these 6 and these 2, they are not equally likely. 8 outcomes, these 8 outcomes are not equally likely. Not equally likely. समझने के लिए एक बार प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 when head is the outcome on the coin toss and 1 is the outcome on the dice. तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, अभी बताओ क्या ये दोनों इवेंट से इंडिपेंडेंट है? डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है, बिकॉज कॉइन को जब हम टॉस कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा और डाइस को जब थ्रो करें तो जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड वन विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ कोर्स इन द कॉइन टॉस, फर्स्ट टॉस में. ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टॉस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट टॉस में, एंड मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑन डाइस. Now probability of head will be equal to 1 by 2 multiplied by probability of 1 will be equal to 1 by 6 because total 6 outcomes है, हमें चाहिए 1. So 1 by 2 into 1 by 6, probability of H1, this will be 1 by 12. And since all these events 1, 2, 3, 4, 5, 6 all these are equally likely, तो सबकी probability क्या होगा? This will also be probability of H and 2, H and 3 and till H and 6. तो सबकी probability क्या होगा? All these events will be having probability of 1 by 12. और टोटल सम क्या आ जाएगा इनका? 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो टोटल प्रॉबिलिटी आ जाएगा 1/2, विच इज परफेक्टली लॉजिकल बिकॉज ऑल दीज इवेंट्स आर करिंग व्हेन हेड इज देयर ऑन द फर्स्ट टॉस. तो टोटल सम शुड बी 1/2. इजंट इट सो? अब बात करते हैं, अगर हमें चाहिए प्रॉबिलिटी ऑफ टेल एंड हेड, यानी कि फर्स्ट कॉइन टॉस पे देयर इज अ टेल, सेकंड कॉइन टॉस पे देयर इज अ हेड. तो अगेन टू कॉइन टॉसेस और बोथ कॉइन टॉसेस आर इंडिपेंडेंट. तो फर्स्ट टॉस पे टेल आए, सेकंड में हेड आए, फर्स्ट टॉस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 और सेकंड टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी विल आल्सो बी 1/2 एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट. मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 into 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4. देखिए टेल एंड हेड का प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4 एंड सिमिलरली टेल एंड हेड, टेल का प्रोबेबिलिटी विल आल्सो बी 1/4 एंड अगेन सम ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू 1/2 विच इट शुड बी द केस बिकॉज 50% टाइम पे फर्स्ट टॉस में हमारा टेल आएगा. तो 1/2 प्लस 1/2 टोटल प्रॉबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1 विच शुड बी द केस. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि डेफिनेटली फर्स्ट 6 इवेंट्स H1, H2, H3, H4, H5, H6, these 6 are equally likely. TH, TT, these are also equally likely. But सारी 8 इवेंट्स, all 8 इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया. क्या ये क्लियर है? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अब पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली वन हेड. अगर अब तक तुमने पॉज करके अपने इन पर सॉल्व करने का एफर्ट नहीं किया था तो मेक श्योर टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन नाउ. वैसे तो सारे आंसर्स हमने निकाल ही लिए हैं, सो क्वेश्चन इज ऑलरेडी फिनिश. तो बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली वन हेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली वन हेड. अब ये एग्जैक्टली वन हेड कैसे कैसे आ सकता है? दिस कुड बी द हेड ऑन द फर्स्ट टॉस और हेड ऑन द सेकंड टॉस. ठीक है, हेड ऑन द फर्स्ट टॉस, हेड ऑन टॉस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन टॉस टू. ठीक है, बट जब भी हम ऐसे देखेंगे, जस्ट इन केस अगर ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इन सम अदर क्वेश्चन वी विल ऑल्सो हैव टू सब्ट्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी व्हेन हेड ऑन बोथ टॉसेज इज देयर बिकॉज दैट विल बी डबल काउंटेड. अब इन दिस केस अगर हेड आ रहा है तो सेकंड हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो दिस विल बी 0. कोई प्रॉब्लम नहीं. हम स्ट्रेट वेकेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन द सेकंड टॉस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस दैट इज इक्वल 1/2. अब सेकंड पे कुछ भी है, सेकंड टॉस में फर्क नहीं पड़ता, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन द सेकंड टॉस. सेकंड टॉस पे हटाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर सिर्फ सेकंड टॉस की बात करें तो होता 1/2, बट ऑलरेडी हमने 1/2 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, सेकंड टॉस में हेड कैसे आ रहा है हमारा? इन दिस केस व्हेन T एंड H, दिस इज द केस, तभी तो आ रहा है सेकंड टॉस में हेड हमारा. ठीक है, तो सेकंड टॉस में हेड आने के लिए पहले फर्स्ट टॉस जो हमने थ्रो किया है उस पर सेकंड टॉस का हेड डिपेंडेंट है हमारा, उस पर डिपेंडेंट है. इजंट इट? तो दिस केस इज व्हेन फर्स्ट टॉस पे टेल आएगा, सेकंड टॉस पे हेड आएगा. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 into 1/2 and hence 1/4. Answer will be 3/4. Probability of one head that will be equal to 3/4. 1/2 फॉर हेड ऑन द फर्स्ट टॉस, और फिर सेकंड टॉस में हेड तब आएगा जब फर्स्ट टॉस में टेल आया हो, अदरवाइज फिर हम सेकंड टॉस थ्रो ही नहीं करेंगे अगर फर्स्ट टॉस में हेड आ जाएगा तो. दैट इज वाई दिस सेकंड वाला सिनेरियो, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द आउटकम ऑफ द फर्स्ट टॉस. नहीं, ठीक है. सो 1/2 प्लस 1/2 into 1/2, क्या क्लियर है? तो आंसर विल बी 3/4. ओके, नाउ जस्ट इन केस कंफ्यूजन अराइज हो तो उसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ यहाँ पे कि दिस वैल्यू, दिस इज बेसिकली, फर्स्ट हमने लिखा 1/2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड on the second toss multiplied by probability of head such that tail has occurred in the first toss.
फर्स्ट वाला है टेल, probability of tail, और सेकंड है probability of head such that tail has occurred. ठीक है, सो दिस इज द केस. यहाँ पे probabilities मल्टीप्लाई हो रहा है, बट किस तरह से हो रहा है वो समझने के लिए एक बार एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया, सो दैट जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहा यहाँ पे. ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट सी की. पार्ट सी कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर तो डाइस से ही मिलेगा, डाइस थ्रो में ही मिलेगा. सो डाइस थ्रो में प्राइम नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, 2 और 3 और 5. सो 3 केसेज आर देयर व्हेन वी विल बी ऑब्टेनिंग अ प्राइम नंबर. और प्राइम नंबर तब मिलेगा जबकि फर्स्ट टॉस में हेड आया हो. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्राइम नंबर क्या होगा. इन दैट केस वी नीड फर्स्ट हेड एंड देन डाइस में 3 फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास, 2 3 और 5. तो फर्स्ट आउटकम में फर्स्ट टॉस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी इज 1/2. एंड सिंस डाइस वाला केस इज इंडिपेंडेंट, तो मल्टीप्लाइड बाई डाइस में 3 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ टोटल केसेस 6, तो 1/2 इंटू 3/6 विच विल बी 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर दैट इज इक्वल 1/4. ओके, लास्ट केस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल. एटलीस्ट वन टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा. तो बोथ दीज केसेस, या तो टेल और हेड आ जाए या फिर टेल और टेल आ जाए, एटलीस्ट वन टेल चाहिए. तो अगर हमारा सेकंड टॉस ही हम तब करा रहे हैं व्हेन वी आर गेटिंग टेल इन द फर्स्ट टॉस. अगर फर्स्ट टॉस में हेड आ जाएगा तो फिर तो टेल आने का पॉसिबिलिटी खत्म ही हो जाता है वहां पे. तो इवन इफ वी आर गेटिंग वन टेल दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन. तो जैसे ही फर्स्ट टॉस में टेल आ गया, सो उसके बाद में सेकंड टॉस में टेल आए, हेड आए, कुछ भी आए, कैसा भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता. डाइस भी थ्रो कराते तो भी फर्क नहीं पड़ता. तो बस हमारे लिए सारे काम के केसेस होंगे जबकि फर्स्ट टॉस में टेल आ गया हमारे पास. ठीक है, एटलीस्ट वन टेल का प्रोबेबिलिटी विल बी दिस विल बी इक्वल टू 1/2 जब फर्स्ट टॉस में टेल ऑन द फर्स्ट टॉस. इसके बाद कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. अदरवाइज प्रोबेबिलिटीज हम एडअप करते हैं कि टेल हेड प्लस टेल टेल यानी 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/2. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो. ठीक है, और थोड़ा सा भी अटक रहा है उस क्वेश्चन में. सो सिंस पहला क्वेश्चन ही है और इसको हमने अच्छे से लिया है, अच्छा क्वेश्चन लिया है, अच्छा एग्जाम्पल लिया, सो दैट तुम्हें चीज़ें क्लियर हो. अब आगे वाले क्वेश्चन तुम्हें ईजी लगेंगे, केक वॉक लगेंगे, लगने चाहिए अगर लैंग्वेज को प्रॉपरली समझोगे और अप्रिशिएट कर पाओगे इन बातों को. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ 4-day पीरियड अ हाइट एंड वेट मेजरमेंट वर रिकॉर्डेड पोस्ट डिलीवरी फॉर ईच बेबी बॉर्न इन अ हॉस्पिटल. The 19 babies in the study were divided into two groups, Group A and B. A chart shows the length in centimeter and weight in kilograms for the 19 babies. If a baby with weight less than 3.5 kg were selected at random, तो what would be the probability that the baby would be a part of Group A? 4-day period है, height and weight measurement were recorded post delivery for each baby born in a hospital. 19 babies हैं और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए इज इन ब्लू सर्कल and group B is a triangle. Now question is asking if a baby with weight less than 3.5 kg were selected at random. तो रैंडमली हमने किसको सेलेक्ट किया है, रैंडम इवेंट क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, बेबी का वेट शुड बी लेस देन 3.5 kg. ठीक है, वेट इज ऑन द वाई एक्सिस, तो दैट वेट शुड बी लेस देन 3.5 kg. तो the babies that are relevant in our case, those should be having weight less than 3.5. जो 3.5 kg वाला लाइन है उससे बस डाउनवर्ड्स ही देखना है, उससे नीचे ही हमें देखना है. दोज आर द रेलेवेंट केसेस. And then out of these cases we need to find out baby probability that the baby would be part of group A. So weight should be less than 3.5 kg and then baby should be part of group A. So probability of baby being part of group A such that weight is less than 3.5 kg. तो क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है ऐसे. ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन वो नहीं भी समझोगे ये बात तो भी हो जाएगा इजीली, क्योंकि हमारा कंसर्न क्या है, वेट ऑफ द बेबी शुड बी लेस देन 3.5. कितने बेबीज हैं लेस देन 3.5 पे, टोटल बेबीज कितने हैं, 1 2 3 4. 4 आर बेबीज फ्रॉम ग्रुप ए एंड ट्राइंगल्स कितने हैं, 6 ट्राइंगल्स टोटल. तो 6 आर बेबीज फ्रॉम ग्रुप बी. टोटल बेबीज आर 10 आउट ऑफ विच 4 आर फ्रॉम ग्रुप ए और हमें चाहिए ग्रुप ए वाले ही. So 4 are favorable, total are 10, 4 by 10, 0.4 will be our answer, option B. Otherwise, this is a conditional probability वाला case कि probability that baby should be from group A such that weight is less than 3.5 kg. ठीक है, so ये जो condition है हमारा, this is our condition, weight should be less than 3.5. ओवरऑल में probability different होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओवरऑल में कैलकुलेट करते तो सिनेरियो क्या बनेगा,
In overall case, total babies are 19. Total cases are 19. Out of 19, ग्रुप ए में कितने हैं? ग्रुप ए में 4 आर लेस देन 3.5 एंड 1 2 3 4 5 5 आर मोर देन 3.5. टोटल आर 9. तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इज 9 by 19. बट 9 by 19 विल नॉट बी द आंसर इन दिस केस. आंसर हमारा होगा 4 by 10, बिकॉज हमारा कंडीशन क्या है? दैट वेट शुड बी लेस देन 3.5 kg. ओके, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If 3 coins are tossed simultaneously, so we have to find the probability of getting 3 tails, first part, and second part getting at least 2 heads. What will be the probability of getting at least 2 heads? क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टॉसेज आर देयर, तो हर एक टॉस में कितने केसेस बनेंगे? ऑन ईच कॉइन टॉस या तो हेड आएगा या टेल आएगा. 2 केसेस. टोटल 3 टॉसेज है, 2 into 2 into 2, 8 केसेस बनेंगे. Those cases will be either it will be all heads, head, 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 or head, head, tail, then head, tail, head, head, tail, 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 head, head, tail, head, tail, 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 head, and lastly tail, tail, tail. So these are total 8 cases. First part is getting 3 tails. Total cases कितने हैं? 8 हैं. And getting 3 tails, that is happening in only one case. One case out of 8. So one favorable case out of 8 cases. So 1 by 8 will be the answer for part A. Part B is saying getting at least 2 heads. So at least 2 heads are needed. अब since 3 tosses are there, so either heads will be 2 heads or 3 heads. And both these are favorable cases. Either 2 heads or 3 heads. 3 heads are occurring exactly in one case. 2 heads are occurring in this case, in this case, and in this case as well. So 3 cases of 2 heads, 1 case of 3 heads, 3 plus 1, 4 are favorable cases. Out of total 8, 4 by 8 or 1 by 2 will be the answer. So our answer in this case will be equal to 1 by 2. क्या ये चीज़ क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, बट यहाँ पे तो हमने केसेस मैनुअली लिख लिए, लिख के कर लिया. बट अदरवाइज इन जनरल अगर 3 कॉइन टॉसेस के बजाय 5 टॉसेस होते, 6 टॉसेस होते, 7 टॉसेस होते, तब फिर सारे केसेस तो हम नहीं लिख पाते. तो लॉजिक क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में? फॉर एग्जाम्पल हमें पहले केस में चाहिए था गेटिंग 3 टेल्स. ठीक है, टोटल 3 टॉसेज हैं और 3 में से हर एक टॉस में हमें चाहिए टेल. सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल 3 आर टेल्स. नाउ ऑल टॉसेज आर इंडिपेंडेंट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे केसेस हमारे इंडिपेंडेंट हैं. तो फर्स्ट कॉइन टॉस में टेल आए, प्रोबेबिलिटी विल 1 by 2. सेकंड कॉइन टॉस में टेल आए 1 by 2. थर्ड कॉइन टॉस 1 by 2. ऑल आर इंडिपेंडेंट, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 1 by 8. ठीक है, और बेसिकली टोटल केसेस विल बी 2 to the power n, 2 to the power 3. दिस इज आवर टोटल number of cases and we need all 3 tails. ठीक है, so all of 3 should be tails. तो टेल हमारे कितनी जगह पर अरेंज होने हैं? ऑल 3 प्लेसेस पे हमें टेल को अरेंज करना है. ठीक है, सो ऑल 3 शुड बी टेल्स, यानी 3C3 से हमने सारे के सारे टेल सेलेक्ट किया. सो ओनली 1 केस इज पॉसिबल, फेवरेबल केस. तो 1 by 8 विल बी आवर आंसर. एंड सेकंड सिनेरियो, सेकंड केस गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स. ठीक है, सो एक तो तरीका हो गया, हम अपन ने मैनुअली देख लिया, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और फिर 3 हेड्स विल बी ऑल हेड्स. ठीक है, या फिर ये सोचते कि वी नीड ईदर 2 हेड्स और 3 हेड्स. टोटल केसेस आर क्लियर, दैट इज 2 cube ओनली, 2 to the power n, 2 cube ओनली. ठीक है, फेवरेबल केसेस आर ईदर 2 हेड्स, तो 2 हेड्स आउट ऑफ 3. टोटल कॉइन टॉसेस आर 3, आउट ऑफ 3 वी नीड 2 हेड्स. इन 3 ways हेड्स कैन बी अरेंज्ड, प्लस बाकी सब जगह तो टेल ही आ जाएगा. ठीक है, प्लस ऑल 3 हेड्स, तो दैट इज 3C3. 3C2 is 3, 3C3 is 1, 3 plus 1 by 8, that is equal to 1 by 2. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज द राइट अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारे नंबर ऑफ कॉइन टॉसेस बढ़ेगा भी, तो भी हम इजीली इसको हैंडल कर पाएंगे. इज दैट क्लियर? एंड इफ दैट इज अंडरस्टूड, सो देखो केसेस हमारे क्या क्या बनने वाले हैं. इधर देयर विल बी 0 हेड्स, और देयर विल बी 1 हेड, और 2 हेड्स, और 3 हेड्स. ये तो 4 केसेस होंगे. ठीक है, एंड व्हेन देयर आर 0 हेड्स देयर विल बी 3 टेल्स. When there are 1 heads, there will be 2 tails. When 2 heads, 1 tail. When 3 heads, there is 0 tail. और क्योंकि टेल और हेड आने का प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है, 1 by 2 50% चांस है. ठीक है, तो 3 tails and 3 heads वाले सिनेरियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे. Isn't it so? 3 tails कब आ रहे हैं? When we have 0 heads. And since 3 tails and 3 heads,
बिकॉज सिमेट्रिकल मामला है, ठीक है। बोथ के लिए देयर विल बी इक्वल अकरेंसेस, यानी कि 0 हेड्स एंड 3 हेड्स के लिए भी इक्वल अकरेंसेस होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? Isn't it so? Similarly, same logic for 2 tails and 2 head, equal occurrences होंगे. That is why 1 head and 2 head will be having equal occurrences. बाकी कैलकुलेट भी कर लेंगे कि 0 हेड्स चाहिए, कितने वेज में हो सकता है? ऑल 3 टेल्स एग्जैक्टली 1 वे, ऑल 3 हेड्स एग्जैक्टली 1 वे, ठीक है। 3C0 या 3C3 बोथ आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली 1 हेड चाहिए तो दैट 1 हेड कैन बी ऑन द फर्स्ट आउटकम और द सेकंड टॉस और थर्ड टॉस, 3 केसेस, एंड सिमिलरली 3 केसेस फॉर 1 टेल और 2 हेड्स 3C2, ठीक है। टोटल केसेस आर 1 + 3 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। फर्दर एलेबोरेट करने के लिए एक केस लेते हैं 4 टॉसेस का। 4 टॉसेस, either there will be 0 heads or 1 head, 2 head, 3 head or 4 head. Now number of cases for 0 head will be 4C0, number of cases for 1 head will be 4C1, then 4C2, 4C3 and 4C4, and again यहाँ पे 0 heads and 4 heads का number of ways will be equal, which are equal to 1. 1 head and 3 head का number of ways will be equal, which will be 4 only, and 2 heads का ways will be 4C2, which is equal to 6. Total ways will be equal to 2 to the power n, which is equal to 2 to the power 4 in this case, that is equal to 16 cases. अब क्वेश्चन किसी भी तरह का प्रोबेबिलिटी पूछता है, हम इजीली आंसर कर पाते हैं इसको। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड इफ दैट इज क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one tail? Probability of getting at least one tail greater than or equal to one tail in 5 coin tosses. तो इन 5 coin tosses टोटल केसेस कितने बनने वाले हमारे? 2 to the power 5, which is 32. 32 total cases, and we need at least one tail. कम से कम एक टेल तो आना चाहिए, ठीक है। तो केसेस क्या क्या बनेंगे? इधर देयर विल बी 0 टेल्स और 1 टेल और 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल। टोटल समय पता है, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 5, which is 32. हमें क्या चाहिए? ऑल दीज केसेस व्हेन नंबर ऑफ टेल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑल दीज आर फेवरेबल केसेस। Isn't it so? अब या तो फेवरेबल केसेस को कैलकुलेट कर लो, या फिर जो रिमूव करना है, दिस हैज टू बी रिमूव्ड, उसको कैलकुलेट कर लो। एंड सिंस 0 टेल्स वाला केस एक ही केस है जिसको रिमूव करना है, तो दैट इज मच ईजियर, तो उसको रिमूव करने वाले केस को कैलकुलेट कर लो। सो दिस विल बी इक्वल टू 5C0, which is equal to 1. Only in one case there will be 0 tails. So one case should be subtracted. Favorable cases कितने होंगे? 32 minus 1. So this will be 31 by 32. Our answer will be 31 by 32 in this case. या फिर बाकी केसेस कैलकुलेट कर लोगे, बट वहाँ पे बाकी केसेस में वी विल बी हैविंग मोर कैलकुलेशन, दैट इज वाई इट इज मच सिंपलर टू एक्सक्लूड व्हाट नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। विच इज एज सिंपल एज सेइंग that probability of greater than or equal to one tail is same as total probability, which is 1, minus probability of having 0 tails, or less than 1 tail, which is only one case, 0 tails, that is equal to 1 minus total cases are 32. फेवरेबल केस क्या होगा हमारा 0 tail के केस में? exactly 1, तो 1 minus 1 by 32, that is equal to 31 upon 32. okay, is that part clear? ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में होगा। एंड इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी डिस्कस्ड, ऑल द क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज press the subscribe button if you've not already subscribed to the channel. And if you've not joined the Telegram channel, then you can also join the Telegram channel Mathological, or can message me on Telegram at ADITYAKT. That is all for this session, and we'll be doing more questions in the next session onwards. Bye bye, take care and keep learning.